Hello, my dear students. Let us enhance our learning through question and answers of chapter 4, The World of Metals and Non-Metals. Question number 1. Which metal is commonly used to make food packaging materials as it is cheaper and its thin sheets can be folded easily into any shape? तो इसमें टेक अवे मैसेज क्या है? दैट इट इज़ चीपर एंड ऑल्सो इट कैन बी फोल्डेड इनटू थिन शीट्स, यानी कि क्या वो है मेलिएबल, राइट? तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? एल्यूमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है. देखिए गोल्ड यहाँ से हट गया क्योंकि देखिए ये सारे मेटल्स हैं, ये सभी मेलिएबल है, मेलिएबिलिटी वेरी करती है. गोल्ड यहाँ से हट गया क्यों? क्योंकि हमने कहा है चीपर. चीपर में गोल्ड नहीं आया, गोल्ड तो एक्सपेंसिव है, राइट? एल्यूमिनियम चीपर भी है, आराम से थिन शीट्स में फोल्डेड भी हो जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल is a good example for that. So your first option is the answer. So which of the following, second question, which of the following metal catches fire when it comes in contact with water? That is sodium. We all know that, right? Sodium reacts very vigorously when it comes in contact with water. In the third question, we have to state with reasons whether the following statements are true or false. तो क्या है first statement? देखिए first statement है aluminium and copper are examples of non-metals used for making utensils and statues. A false statement because aluminium and copper are metals, right? यहाँ से non हट जाएगा. These are metals, right? So non-metals नहीं है ये. Second question is, first question हो गया हमारा. Second question is metals form oxides when combined with oxygen, the solution of which turns blue litmus paper to red. You all have studied that oxides of metals are generally basic in nature and bases turn what? Bases turn red litmus into blue, not blue litmus to red. कौन करता है blue litmus to red convert? Acids करता है, right? So this is a false statement, right? Now we go on to the third question of true and false, which is oxygen is a non-metal essential for respiration. Definitely oxygen non-metal भी है और oxygen essential है for respiration too. You remember breathing is a part of respiration, so oxygen is essential for respiration too. And थर्ड हो गया. फोर्थ इज कॉपर वेसल्स आर यूज्ड फॉर बॉइलिंग वाटर बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ अगर ये होता कि गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दैट वुड हैव बीन अ मोर रिलायबल आंसर. बट ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है कॉपर, एंड इलेक्ट्रिसिटी यू विल रीड इन हायर क्लासेस causes heating effect. So while copper vessels are used for boiling water is correct, the answer should be they are good conductors of heat rather than electricity, but indirectly this is a true statement. Okay, so this is true. तो हमने क्या देखा कि फर्स्ट ऑप्शन था फॉल्स, राइट? एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर मेटल्स. सेकेंड ऑप्शन फॉल्स था बिकॉज ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, राइट? और थर्ड ऑप्शन था ट्रू, राइट? Because oxygen is definitely a non-metal essential for respiration, and fourth option is also indirectly true, right? Now we go on to question number 4. Why are only a few metals suitable for making jewelry? देखिए ज्वेलरी बनाने में क्या चाहिए? हमें मेटल्स चाहिए. और मेटल्स क्यों चाहिए? मेटल्स है इजीली दे कैन बी मेल्टेड, दे कैन बी कास्ट इनटू वेरियस शेप्स. ज्वेलरीज कितने शेप्स के होते हैं ना, डिफरेंट शेप्स के. सर्कल हो गए, ओवल हो गए, रेक्टेंगल हो गए, स्पाइरल हो गए. तो इन शेप्स में इनको कन्वर्ट किया जा सकता है. इस वजह से मेटल्स आर सूटेबल. ओनली अ फ्यू मेटल्स एक्चुअली, उनको शाइनी भी होना पड़ता है बहुत ज़्यादा मेटल्स को, और मेटल्स को मेलिएबिलिटी ज़्यादा होनी पड़ती है, और उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को भी देख के ज्वेलरी बनाई
सकती है कि बहुत इजीली ब्रेक हो गया, ऐसे वाले मेटल्स नहीं यूज़ होते। देखिए हार्डनेस और मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, दीज आर ऑल फैक्टर्स विच हेल्प फॉर मेकिंग ज्वेलरी। लेकिन मेटल्स का भी ना मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में फ़र्क है। तो वो जो है, जो गोल्ड एंड सिल्वर जैसे हैं, जो हाईली मेलिएबल है, हाईली डक्टाइल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग ज्वेलरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मैच द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गिवन इन कॉलम 1 विद द जम्बल्ड नेम्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स गिवन इन कॉलम 2। तो इसका अप्रोच कैसा होगा ना कि कॉलम 1 के आंसर्स हम पहले हम थिंक कर लेंगे और फिर कॉलम 2 के जो जम्बल्ड अप वर्ड्स है उससे मैच करवाने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो जनरली कौन सा यूज़ होता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में? कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा? कॉपर यूज़ होता है। पढ़ा था ना अपने चैप्टर 2 में, कॉपर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे कॉपर कौन सा लग रहा है आपको? कॉपर है, ये रहा ना, COPPER. So 1 is matched with C, right? 1 is matched with C. Now second question is most malleable and ductile. क्या है? गोल्ड है, राइट? तो गोल्ड कौन सा है? ये यहाँ पे है GOLD, ये रहा E वाला ऑप्शन, राइट? सो सेकेंड क्वेश्चन इज मैचिंग विद E. नाउ द थर्ड वन इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट ऑक्सीजन। सो यहाँ पे देखिए इजीली हमें मिल गया OXYGEN। तो थर्ड इज मैचिंग विद A. नाउ फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला है प्लांट्स ग्रो हेल्दी व्हेन फर्टिलाइजर्स कंटेनिंग इट आर एडेड टू द सॉइल। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कहाँ है? ये रहा NITROGEN, बिल्कुल NITROGEN मिल गया हमें नाइट्रोजन। सो फोर्थ इज मैचिंग विद D, ठीक है, आमने सामने है ये। नाउ फिफ्थ वाला क्या है? यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, छोटी उम्र से पढ़ते आए हैं, दैट इज क्लोरीन, राइट? CHLORINE, क्लोरीन। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन इज मैचिंग विद B. सो 1 इज मैचिंग विद C, 2 इज मैचिंग विद E, 3 इज मैचिंग विद A, 4 is matching with D and 5 is matching with B. Hopefully you have noted all the answers. Now we go on to question number 6. क्या है? What happens when oxygen reacts with magnesium and sulfur? What are the main differences in the nature of the products formed? See, you have already read when you had done the chapter. Nothing is new over here. Magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide, right? Sulfur on the other hand reacts with oxygen to form sulfur dioxide. Now magnesium oxide is basically in ash form. When you burn the magnesium na, it becomes like brittle and forms an ash, right? Now when you add water to it, magnesium hydroxide is produced. Now magnesium hydroxide, when you dip blue litmus paper and red litmus paper into it, you will observe that magnesium hydroxide is basic. How? Because you will see the color change in the litmus paper. Acids turn blue litmus red, and remember bases turn red litmus blue. So in this case, the blue litmus will not be converted into red and will remain as it is, but the red litmus paper will be converted into blue because magnesium hydroxide is basic in nature. Now what about sulfur? आपका सल्फर डाइऑक्साइड एक तो गैस है, ये है एक मेजर डिफरेंस, ऐश नहीं है, गैस है। उसके बाद क्या है? अब सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वाटर के साथ ट्रीट करें तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है। अब वो जो सल्फ्यूरस एसिड है दैट इज एसिडिक इन नेचर. हाउ वुड यू नो दैट? अगेन you would test it with litmus paper. You would dip 2 litmus paper, one of them being blue litmus paper, another being red litmus paper. So you would notice that oxides of metals are generally basic in nature and generally oxides of non-metals such as sulfur are acidic in nature. That is the difference between the products. Now let us go on to next question, which is question number 7. We have to fill in the
फ्लो चार्ट, जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स हैं हमें आंसर लिखने हैं, राइट। सो कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, क्वेश्चन मार्क्स है और फिर है एयर और हीट, मतलब उसको हीट किया गया है, किसी एक सब्सटेंस को हीट करने पे क्या होता है, ऐश प्रोड्यूस होता है। तो क्या होगा, हमने अभी अभी डिस्कस किया ना, मैग्नीशियम ही होगा फर्स्ट में। सो पहले क्वेश्चन मार्क्स में क्या होगा, आई एम पुटिंग द नोटेशन फॉर मैग्नीशियम, ये धीरे धीरे हम पढ़ेंगे नोटेशंस के बारे में। तो मैग्नीशियम reacts with air, that is it is heated, right, and it forms ash. Now ash is then treated with water and then it will form what did I discuss right now, it will form magnesium hydroxide. You see, these are the notation MgOH whole twice. ये बाद में मैं पढ़ाऊँगी सब कंपाउंड्स के कैसे कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं, सब हम डिटेल्स में देखेंगे हायर ग्रेड्स में. नाउ ऐड ब्लू एंड रेड लिटमस सोल्यूशन सेपरेटली. नाउ चेंज इन ब्लू लिटमस सोल्यूशन, देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा. बट रेड लिटमस क्या होगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्लू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बीइंग बेसिक इन नेचर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यू आर प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग मटेरियल्स. क्या क्या मटेरियल्स है, आयरन है, कॉपर, सल्फर, कोल, प्लास्टिक, वुड एंड कार्डबोर्ड. Now discuss which material would be your choice to make a pan that is most suitable for boiling water and why. देखिए यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे पैन बनाना है तो मुझे एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि हीट कंडक्ट कर सके आराम से. तो मैं कोई भी नॉन मेटल्स या फिर ऐसे मटेरियल्स जो मेटल्स नहीं हैं उनको कंसिडर नहीं करूँगी, राइट. तो फिर मैं क्या करूँगी, धीरे धीरे मैं स्ट्राइक ऑफ करती हूँ. देखिए कार्डबोर्ड नॉट कंसिडर्ड, वुड नॉट कंसिडर्ड, कैचेस फायर इजीली, प्लास्टिक नो इट मेल्ट्स, कोल नो, सल्फर नॉन मेटल नो. अब आयरन कॉपर में कौन सा बेस्ट रहेगा, कॉपर इज़ अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट दैन आयरन, तो ऑब्वियसली कॉपर विल बी द बेस्ट चॉइस टू मेक अ पैन, राइट. So moving on with question number 9, you are provided with 3 iron nails each dipped in oil, water and vinegar. Now which iron nail will not rust and why? देखिए मेरे को 3 केसेस दिए गए हैं जहाँ पे आयरन नेल एक तो ऑयल में डिप्ड है और दूसरे केस में वाटर में डिप्ड है और तीसरे केस में विनेगर में डिप्ड है. नाउ ऑयल वाले केस में रस्ट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑयल जो है वो दोनों चीज़ों को कट ऑफ करता है जो रस्टिंग के लिए यूज़फुल है. याद है, मॉइस्ट एयर इज़ नेसेसरी फॉर रस्टिंग, दैट इज़ वाटर एंड एयर बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग. तो ऑयल क्या करता है, ऑयल विल कट ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ. सो यहाँ पे इस केस में, केस नंबर 1 में, where the iron nail is dipped in oil, rusting will not take place. Now what about iron nail dipped in water? So iron nail is dipped in water alone. तो क्या होता है, इसमें धीरे धीरे रस्टिंग होती है. और विनेगर में क्या होगा, विनेगर क्या है, वो करोसिव नेचर का है और जो प्रोटेक्टिव एक लेयरिंग होती है आयरन नेल पे वो करोड कर देता है एंड इवेंचुअली द आयरन नेल विल बिकम थिनर. ओके, नाउ लेट अस गो ऑन टू द 10th question. 9th question हो गया. 10th question is how do the different properties of metals and non-metals determine their uses in everyday life? अब इस केस में क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एग्जाम्पल दे देते हैं कि metals are used for kitchen utensils like pan, but non-metals like wood are used to make the handles, but that is not a correct statement. You know why? Because metals or non-metals, these are both classification of elements. Only the elements are classified into metals and non-metals. Elements क्या है बताया था ना हल्का हल्का कि they are the purest form of matter which cannot be divided further. So ये जो
एलिमेंट्स हैं दीज आर ओनली क्लासिफाइड एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस. यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें प्रॉपर्टीज कंसिडर करनी है मेटल्स और नॉन मेटल्स की. तो मेटल्स के केस में क्या है कि हम 4-5 एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया. Aluminium being hard, being tough, is used for making pipes, is used for making tanks, for ships, for railway lines, right? Aluminium highly malleable, used for making aluminium foil. Aluminium is highly ductile also, used for making overhead wires, right? Now what about iron? Iron is also used for making kitchen utensils. अच्छा, एल्यूमिनियम का एक और यूज़ है, किचन यूटेंसिल्स में भी यूज़ होता है क्योंकि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. आयरन ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट. आयरन इज टफ, हार्ड, यूज फॉर मेकिंग ब्रिजेस एक्सेट्रा. आयरन इज ऑल्सो यूज एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ एन एलॉय. एलॉय मतलब एक मिक्सचर ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स सब मिला के. तो स्टेनलेस स्टील इज़ अ गुड एग्जाम्पल वेयर आयरन इज़ अ कॉम्पोनेंट. तो आयरन क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है स्टेनलेस स्टील को. और क्या है, और कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि जिंक हो गया. जिंक गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन के लिए. क्यों? क्योंकि गैल्वेनाइजेशन ज़रूरी है. जिंक का जो लेयर है वो ज़रूरी है फॉर preventing rust on the iron. And next we can give example of gold and we can give example of silver which are used in jewelry, राइट. तो मेटल्स के बहुत सारे यूजेस हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से यूजेस निकल के आती है. मेटल्स मेलिएबल है, हार्ड है, लस्ट्रस है, डक्टाइल है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. तो इन सारे प्रॉपर्टीज से ही उनकी यूजेस निकल के आती हैं, राइट. और नॉन मेटल्स जैसे कि कार्बन है. कार्बन आर द बेसिक द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन की वजह से है. और कार्बन यूज होता है फॉर फ्यूल एज वेल. कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड यूज्ड फॉर ज्वेलरी. ओके. एंड हाइड्रोजन की बात करते हैं. गुड फ्यूल यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनिया, राइट. और हाइड्रोजन के और क्या यूजेस हो सकते हैं? इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल्सो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग के लिए. Now next usage of oxygen. Oxygen obviously a vital part of respiration, we all know that. And oxygen is also used for combustion. हाँ, बिना ऑक्सीजन के बर्निंग पॉसिबल नहीं है. ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग, राइट. नेक्स्ट इज नाइट्रोजन. नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ही यूज़ होते हैं for the making of fertilizers. Nitrogen is also essential for the growth of plants. Sulfur क्या किस में यूज़ होता है? सल्फर यूज़ होता है for treatment of rubber. रबर वैसे तो इलास्टिसिटी होती है बट थोड़ा स्टिकी रहता है. इसकी इलास्टिसिटी, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? देयर इज सल्फर ट्रीटमेंट गिवन टू द रबर, राइट. तो उसमें क्रॉस ब्रिजेस, सल्फर के ब्रिजेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं. अभी इस बारे में बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड is to put a thin coating of zinc metal over it, right. Since sulfur does not react with water, can it be used for this purpose? Justify your answer. देखिए, sulfur does not react with water, but it reacts with oxygen, right? Sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide. Now, sulfur dioxide is what? Sulfur dioxide is gas. Now, अब आयरन पे जो एक ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयरिंग लगनी थी, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होती, वो तो लगने से रहा, वो तो नहीं होगा. तो सल्फर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस, राइट. सल्फर बीइंग अ नॉन मेटल, इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस पर्पस. Sulfur reacts with oxygen to form sulfur dioxide, which is a gas, cannot provide the protective oxide layering on iron, which is used to protect it from rusting. Now question number 12. An ironsmith heats iron before making tools. Why is heating necessary in this process?
देखिए आयरन स्मिथ हीट क्यों करता है टूल्स को, क्योंकि उसको बनाना है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, और टूल्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होते हैं। तो आयरन को हीट करेंगे तभी तो, क्योंकि मेटल है ना, मेलिएबल है, वो आराम से किसी ना किसी फॉर्म में ले लेगा। तो किसी भी फॉर्म में, किसी भी शेप में these metals such as iron can be casted into, right? So heating is necessary in this process because we need to make different tools of different shapes. So iron, when it is heated, it melts and it can be casted into different shapes, and that is why heating process is necessary for making such tools. I hope the question and answers are very much clear to you, but still any doubt, any query you have, you can totally contact me. I'll be happy to help. Happy learning students, मिलते हैं next class में. Bye bye.